Good morning, students. This is your next class of computer science. In this class, we are discussing about number system. In mathematics, you also read this chapter, number system. But in computer, there is also a number system, and that number system only our computer can understand. So let's come in our point, that is number system. So first, you see there, what is number system? Number system are the technique to represent numbers in the computer system, every value that you are saving or getting from computer memory. कोई भी वैल्यू जो आपका कंप्यूटर मेमोरी लेता है और वैसा टेक्निक जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम. ऑल ऑफ यू नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली कोडिंग लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1. When we are giving the input to our computer, then our computer converts that language into a binary language, that is coding language, whose code is 0 and 1. Our computer supports some number systems. That number systems are binary number systems, octal number systems, decimal number system, and hexadecimal number system. We are discussing each and every number system one by one. Our first number system is binary number system. In our binary number system, there are only two digits, 0 and 1. Every number represents with 0 and 1. When we are getting input to our computer, that input, all inputs are break and it goes to the coding language. That language is 0 and 1. And the base of our binary number is 2. Then we come on our next point, that is octal. It has only 8 digits. It represents with 0 to 7. When we are knowing the number octal and when we are solving this problem, then we see that the number starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And the octal number, its base is 8. Then we come on our next point, that is decimal number system. Our decimal number system has only 10 digits. And this number is represented by 0 to 9. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 8 and 9. Then we come on our last one, that is hexadecimal. It has only 16 digits. Binary has 2, octal has 8, decimal has 10 and hexadecimal has 16 digits. It is represented with 0 to 9 and A to F. You think that these numbers are representing in digits, but this number only represents in digits and alphabets both. How? You see that when we are representing the number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Why we are writing 16 numbers? Because the base of our hexadecimal is 16. Then our 0 to 9 is as usual. But when we are getting the number 10, 10 represents with A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E and 15 F. So this represents 0 to 9 and A to F. These are the definition and these are the numbers we have to read. Then
we come in our conversion parts. We are changing the numbers binary to decimal, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. These conversions are we are teaching. Students, now we are discussing about our number system conversion. That means we have to convert the number decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, and it's vice versa. So अब हम लोग सबसे पहले नंबर पे आते हैं डेसिमल टू बाइनरी. आखिर किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोग जानते हैं कि डेसिमल का बेस 10 और बाइनरी का बेस 2 होता है. अब हम लोग इसके कन्वर्सन पे आते हैं. फर्स्ट, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी. वी आर गेटिंग अ नंबर 117. हमने एक नंबर लिया जो 117 था. हमारे बाइनरी का बेस 2 था, इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया. 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. इसका कैरी 1 बचा. उस कैरी को हमें राइट हैंड साइड में लिखना है. द कैरी इज रिटन इन द राइट साइड ऑफ आवर डिवाइडिंग पार्ट. देन अगेन फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18. कैरी इज 0. अगेन 2 से. तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ये डिविजिबल ना हो 2 से. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. कैरी रेस्ट 1, 2 7 0, 2 3 1, 2 1 1. अब इस नंबर को नीचे से ऊपर की ओर लेना है. दैट इज 1 1 1 0 1 0 1 base 2. That is, when we are converting the number 117 into binary, then we get the binary number is this. हम लोग सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर को ओनली कोडिंग लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है. इसीलिए ये हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में ये नंबर यहाँ पे बेस. अब इसका जब हम उल्टा करते हैं, चेक भी तो करना होगा कि आखिर कैसे हमारा ये डेसिमल नंबर बाइनरी में आ गया. तो ये बाइनरी हमारा डेसिमल में आएगा या नहीं? इसके लिए देखिए, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब हम इस नंबर को राइट करेंगे. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6. अब जब हम लोग जानते हैं कि इसका बेस 2 है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये नंबर हमारा 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 into 2 to the power 4, 1 into 2 to the power 5, 1 into 2 to the power 6. अब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए. 2 to the power 0 1, 1 into 1 1, 2 to the power 2 4 into 1 4, 2 to the power 3 into 0 0, 2 to the power 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, and 8 into 2 16. अब जब हम इस सारे के सारे नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा 117 आता है या नहीं, ये देखिए. 4 to 6 6 12, 12 और 4
16 117 7 6 3 9 110 111। तो हमने जिस नंबर का बाइनरी कन्वर्ट किया सेम उस इतना आया, और सेम इसी नंबर का जब हमने डेसिमल कन्वर्ट किया तो हमारा 117 आ गया। दैट मींस वी आर कन्वर्टिंग द नंबर दैट इज करेक्ट। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो हमारा ये कोड आएगा, अगर उसी नंबर को हम बाइनरी से डेसिमल फिर से लाएंगे तो हमारा कोड ये आ जाएगा। अब आवर नेक्स्ट कन्वर्शन इज डेसिमल टू ऑक्टल। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कन्वर्शन जो है डेसिमल टू ऑक्टल, ये कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑक्टल जो होता है उसका बेस 8 होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 117 8 से डिवाइड कीजिए। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 में कितना जोड़ेंगे तो 30 36 37 5, 8 1 जा 8 6। तो जब हमने 117 को कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो हमारा वैल्यू क्या आया, 165 टू द बेस 8। यह था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। अब हम चेक करेंगे कि क्या हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेम वैल्यू आता है। फिर से वैसे ही बांट दीजिए, 1 6 5 0 1 2, 5 into 8 to the power 0, 6 into 8 to the power 1, and 1 into 8 to the power 2. 8 to the power 0, 0, 8 to the power 0, 1, 1 into 5, 5, 8 6 is 42, 48, 8 8 is 64। अब आप इस सबको जोड़िए, सेम बेस। हमने जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमारा 165 आया, और उसी 165 को जब हमने कन्वर्ट किया फिर से डेसिमल में तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 117 आ गया। तो यही था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। अब हमारा नेक्स्ट कन्वर्सन जो है वो है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल कन्वर्सन यानी कि हेक्साडेसिमल का बेस हमारा क्या होता है, 16 होता है, और उस 16 में हमारा 1 to 9 जो होता है वो कोडिंग में रहता है, और उसके बाद ABCDEFG के फॉर्म में चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 117 का ही कन्वर्सन देखेंगे, और उस 117 के कन्वर्सन के बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, जिस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको प्रूव कर सकेंगे। तो सबसे पहले 117 16 into 7 112 5। ये हमारा कितना आ गया, 75 टू द बेस 16। जब हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में तो हमारा वैल्यू कितना आया, 75 आ गया। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 5 into 16 to the power 0, 7 into 16 to the power 1, 5 1 1 12। देखिए जहां से हमने उठाया फिर से हमारा वही आ गया, यानी कि अगर हम इसका कन्वर्सन राइट से करें या लेफ्ट से करें, अगर हमने 16 का कन्वर्सन किया जब हेक्साडेसिमल में तो 75 आया, उसी 75 का कन्वर्सन जब हम लोग इसमें किए तो यही कन्वर्सन हमारा फिर से
7 आ गया। तो यही कन्वर्शन हमारा था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और इसी का उल्टा अगर आपको किसी भी नंबर को चेंज करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी टू ऑक्टल, तो सबसे पहले उस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। आपका कोई भी नंबर हो उस नंबर को सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर को उस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जाएगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने कन्वर्ट, तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर डेसिमल से जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका वैल्यू सेम आ जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं हमारा नंबर सिस्टम का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, यानी कि द एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ आवर नंबर सिस्टम। अभी तक हम लोग पढ़े थे केवल कोडिंग, अब हम लोग इसके जोड़ घटाव और गुना भाग पे आ गए। तो सबसे पहला बाइनरी कैलकुलेशन है हमारा और इस बाइनरी कैलकुलेशन में सबसे पहला हमारा है बाइनरी एडिशन। तो देखिए बाइनरी एडिशन कैसे होता है। इस एडिशन में हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में ए बी, ए प्लस बी। सबसे पहले 0 0 लेते हैं तो 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब प्रॉब्लम हो गया, जब एडिशन करते हैं तो 1 और 1 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज हुज कोडिंग इज 0 एंड 1। तो 1 और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 नहीं लिख सकते हैं। 1 और 1 हमारा 0 होगा, लेकिन इसका एक कैरी होगा। 1 और 1 2 होता है, लेकिन यहां 1 और 1 0 और उसका तो एक कैरी बच गया ना, वो कैरी यहां आ जाएगा और ये 1 और 1 आपका मिलके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये है आपका एडिशन का टेबल। अब देखते हैं हम लोग एडिशन करते हैं 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1। अब देखिए 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 10। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ आवर बाइनरी नंबर। इसी के थ्रू हम लोग इस टेबल के थ्रू कोई भी बाइनरी नंबर का एडिशन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वन है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। आखिर हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये वर्क कर रहा है वैसे ही सेम टू सेम हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी वर्क करेगा। देखते हैं। जीरो 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 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। इसको मिटा दीजिए, सब्सट्रैक्शन। तो देखिए 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0। ये वैल्यू आ गया। आप लोग नॉर्मली इस टेबल को देखिए और इसका सॉल्यूशन यहां पे निकाल लीजिए। यही आपका है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। That is A into B। जैसे आपका बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन में था, सेम टू सेम आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा।
0, 1 into 0, 1, 0, 1 into 0, 0, 1 into 1, 1. अब देखिए 1, 1, 1 into 1, 1. यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पे 0 है. हाँ 0 है. तो ऐड जब करेंगे तो 1, 0, 1, 1, 1, 10. 10 का 0 यहां हो जाएगा, एक कैरी यहां आ जाएगा. 1, 1, 10 और इसका कैरी 1 आ गया, यानी 1 और फिर से 1 कैरी यहां आ जाएगा और 1, 1, 10. ये हो गया हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन. अब हमारा नेक्स्ट वन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन हो गया. अब हमारा सबसे लास्ट बचा इंडिंग, यानी कि अब हमारा बचा डिवीजन. तो हमारा बाइनरी डिवीजन. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बाइनरी डिवीजन. बाइनरी डिवीजन में सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. 1, 0, 1, 0, 1 is divided by 1, 1. 10 is not dividing by 1, 1. So 1, 1 divided by 1, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Then again 1, 0, 0. Then again we are taking with 1, 1, 1, 0, 1, 1. It 1 is comes here and 1, 1, 1, 1. This is your division of binary. We are checking the answer. Is it coming this or not? 1, 1, 1 is multiplied by 1, 1. See there. 1, 1, 1, 10. 1 carry, 1, 1, 10, 1. 1, 1, 10. You see 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. That means this is a division of your binary number. This is your number system class and this class is ended. You are getting that how the number is converted in all the sequences and how these sequences are converting. So this is the end of your class. Next class we are discussing about our next topic. Thank you.